Hello friends, so today we are going to talk about the tuberculosis. In this video you are going to learn about the epidemiology of tuberculosis, the clinical signs and symptoms of the tuberculosis. Okay, so let's learn. Before we start the epidemiology and the clinical signs and symptoms of tuberculosis, what we have learned previously, about the introduction and causative organisms and the types of tuberculosis. Different types of tuberculosis we have discussed in the previous videos. The introduction of the tuberculosis, we have also discussed this in the previous video. And then the pathophysiology or pathology of the tuberculosis is also discussed in the video number 2. if you अगर आपने हमारा वीडियो इससे पहले वाला देखा ना हो तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पहले उन वीडियो को जाकर देखिए. सो एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. तो ग्लोबली, सो द ग्लोबल बर्डन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है पूरे वर्ल्ड में कितना है. इट इज़ नियरली अबाउट ग्रेटर देन 1.7 billion people. Okay, 1.7 billion people, and in which approximately 22% of the world populations are estimated to be infected with tuberculosis. Okay, so इफ़ वी कुड, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मोर देन 1.7 बिलियन पीपल जो है वो सफ़र करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस आर एस्टिमेटेड टू इन्फेक्टेड विथ टीबी. ओके, यानी उनके अंदर टीबी डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या फिर कभी हो भी जाते हैं. ओके, एंड फिर द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ टीबी आर पिक्ड अराउंड 2003 एंड अपेयरिंग टू बी डिक्लाइनिंग स्लोली. नाउ जो डेटा कलेक्ट हुआ है तो उसमें ग्लोबली जो टीबी है 2003 से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था स्लोली, ग्रेजुअली. ओके, तो बट अभी कोविड इन 2019 कोविड के थ्रू जो टीबी जो है फिर से बढ़ गया है. ओके, द प्रिवेलेंस ऑफ द टीबी इज इंक्रीज्ड. ओके, और according to the WHO guidelines in 2020, 9.9 millions individual became ill with TB and 1 millions death has been reported. Okay, 9.9 millions individuals became ill with TB and 1.5 million deaths have been recorded. Okay, and a basic approach to understand the tuberculosis epidemiology. देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई एक नॉर्मल और बेसिक सा अगर हम एग्जांपल लें तो डेवलप्ड नेशंस जो है जैसे कि यूएसए, रशिया वगैरह जो भी डेवलप्ड नेशंस है उनके अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस जो है उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के जो चांसेस होते हैं, या फिर इफ़ यू कुड से दैट ट्यूबरक्लोसिस आर less reported in that particular area, but has been reported more in the developing country, or we can see the cases of tuberculosis can be seen in developing countries are more, okay, as compared to the developed countries. And also nowadays we can see that MDR TB and the XDR TB and the pre-XDR TB, okay, which means that the multi-drug resistance TB can be seen in developing nations also, due to less susceptible to some type of drugs like rifampicin, isoniazid, and many other and other tubercular agents. Okay, so ये जो है हमने देखा. ओके, देखो यही है कि टीबी सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, नाउ विल सी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ओके, एज वी हैव सीन देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. ओके, अब उसके अंदर हमने ऐसा भी देखा था कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ टीबी होता है, दूसरा लेटेंट फॉर्म ऑफ टीबी होता है. एक्टिव फॉर्म ऑफ टीबी जो है वो
शो करता है साइन एंड सिम्टम्स, और वो इन्फेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता है ट्यूबरकुल बैक्सीलाई को, मल्टीप्लिकेशन करता है और लंग्स को या लंग्स को और भी ज़्यादा इन्वेट करता है, एंड देन इट reaches to the systemic circulation. Okay, it can also be reached to the systemic circulation and cause miliary TB. Okay, so pulmonary TB में clinical sign and symptoms are are the classic sign and symptoms. Now remember कि जो elder patients होते हैं, elderly individual with the TB may not display typical signs and symptoms. Now it is not compulsory that in elderly patient we can see the typical sign and symptoms जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं. उनको एटिपिकल साइन एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं. एटिपिकल साइन एंड सिम्टम्स आर लेस आर लेस मार्क्ड, या फिर बोल सकते हैं कि वो नॉर्मली जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. ओके, अब क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, द फर्स्ट वन इज द कफ. ओके, इट इज़ कफ. तो सबसे ज़्यादा कफ होगा, जितना बहुत ज़्यादा कफ होगा, एंड नियरली अबाउट मोर देन 2 weeks persistent cough will be present in a particular patient. Okay, and weight loss and anorexia, weight loss और anorexia और वेट लॉस होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेट लॉस भी हो रहा है. तो वेट लॉस हो रहा है विच मीन्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग लेस लॉस ऑफ अपेटाइट. ओके, लॉस ऑफ अपेटाइट विच मीन्स कि भूख लगना बंद हो जाती है. भूख लगना बंद हो जाएगा तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक है. फिर सेकंड थर्ड जो है वो फीवर है. तो पेशेंट जो है वो फीवर होता है पेशेंट को. ओके, एंड नाइट स्वेट या फिर स्लीप हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं नाइट स्वेट्स को. तो स्लीप हाइपर हाइड्रोसिस. नाउ नाइट स्वेट्स are also be seen in tuberculosis. Okay, hemoptysis is nothing but blood can be seen in the sputum. Okay, sputum में bloods देख सकते हैं हम. Then chest pain, and the chest pain can also be occur due to the acute pericarditis. Now acute pericarditis also be due to tuberculosis. Okay, तो इसके थ्रू भी हो सकता है. एंड देन फैटिग, थकान ज़्यादा लगती है. ओके, सो दिस वाज द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. तो अब जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, देखो बेसिकली टीबी जो है बॉडी के किसी भी एरिया में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. ओके, बट अभी यहाँ पर जो है 2 एग्जांपल लेते हैं हम. सो फर्स्ट वन इज़ द टीबी मेनिंजाइटिस. ओके, टीबी मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक दैट हैज़ बीन ईदर इंटरमिटेड और परसिस्टेंट फॉर 2 to 3 weeks. ओके, now headache has been there with the patient. Okay, तो पेशेंट जो है उसके अंदर हेडेक होगा उसको, और या तो वो परसिस्टेंट होगा या तो फिर इंटरमिटेंट होगा, यानी कुछ टाइम के बाद फिर से हेडेक होगा. मतलब पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड्स में हेडेक होगा. मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगा, या फिर कंसिस्टेंट भी होता है कभी कभी. तो परसिस्टेंट फॉर 2 to 3 weeks, तो 2 to 3 weeks में हेडेक होता है. फिर देन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. ओके, सो सबटल मेंटल स्टेटस चेंजेस दैट में प्रोग्रेस टू कोमा ओवर अ पीरियड ऑफ डेज to weeks. ओके, दिस वॉज द सेकेंड सिम्टम्स ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस. ओके, फर्स्ट वन कि हेडेक होगा, and which would be either intermittent or persistent type of headache, and for 2 to 3 weeks. Okay, headache 2 to 3 weeks या फिर उससे ज़्यादा होगा. and then the patient altered mental status. This is the second symptoms of the TB meningitis, and which may progress to coma over a period of days to weeks. Okay, if it is left untreated, then
it can be develop and progress into the coma. The patient may go into coma also. Okay, and फिर आता है लो ग्रेड और एब्सेंट फीवर. ओके, सो पेशेंट मे बी हैविंग लो ग्रेड फीवर और there are absence of fever can be seen in the patient. And the second example is skeletal TB. Okay, skeletal TB, symptoms of skeletal TB may include the बैक पेन और स्टिफनेस. नंबर 1 याद रखना, बैक पेन और स्टिफनेस होता है सिम्टम्स में. ओके, और सेकेंड वन इज लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस इन एज half of patients with undiagnosed spot disease. Okay, now what is spot disease? It is a tubercular spondylitis. Okay, spondylitis, tubercular spondylitis होता है. तो ये जो है सेकेंड एग्जांपल है स्केलेटल टीबी का. ठीक है, तो एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज मारते हैं. ठीक है, आज जो है, आज का वीडियो जो है सिर्फ 2 चीज़ है मेन इसमें, एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. एपिडेमियोलॉजी में हमने देखा कि ग्लोबल जो बर्डन है, मोर देन 1.7 बिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द टीबी. ओके, एंड अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू infected with TB. Okay, so 22% of the world populations are more prevalent to form infected are more prevalent to infected with the TB. Okay, which is the active form of TB. Global burden, the global incidence of the TB are peaked around 2003 and appearing to be declining slowly. तो जो टीबी के जो केसेस है वो 2003 के बाद ऐसा रिपोर्टेड हुआ था कि उसके जो केसेस है वो स्लो हो गए हैं. ओके, देन अकॉर्डिंग टू WHO 2020 पे इन इंडिया 9.9 मिलियन इंडिविजुअल्स बिकेम ill with TB and 1.5 million deaths have been reported in 2020. Okay, a basic approach to understand the tuberculosis epidemiology. Remember that the developed nations are less prevalent to TB. Okay, they are less prevalent to TB, या फिर जो TB के जो केसेस है वो डेवलप्ड नेशंस में बहुत कम देखने को मिलते हैं या फिर कभी नहीं भी देखने को मिलते हैं. ओके, एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा. और MDR TB और XDR TB और प्री XDR TB भी देखने को मिलता है इन डेवलपिंग नेशंस. ओके, एंड इन इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल वेयर TB केसेस आर मोर. ओके, और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हमने देखा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल कुछ क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स है, जिसमें हमने देखा कफ है, परसिस्टेंट कफ होता है, वेट लॉस होता है या एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख कम लगती है, खाना कम खाते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, हीमोप्टाइसिस होता है. हीमोप्टाइसिस यानी कि स्प्यूटम में ब्लड आना दिखना चालू हो जाता है. चेस्ट पेन होता है. अब वो जो है कभी कभी इट कुड बी रिजल्ट फ्रॉम द ट्यूबरकुलस एक्यूट पेरिकार्डिटिस एंड द फैटिक. थकान ज़्यादा लगती है या थक जाते हैं जल्दी. ओके, और थके से फील आता है पूरा टाइम. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के एग्जांपल्स हमने देखा टीबी मेनिंजाइटिस और स्केलेटल टीबी. टीबी मेनिंजाइटिस में हमने देखा कि जो पेशेंट जो है वो 2 to 3 वीक इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट हेडेक होगा उसको और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा अगर ट्रीट नहीं किया तो विच कैन बी लीड टू द कोमा. ओके, over a period of days to weeks. Okay, and then low grade fever can be seen in, or sometimes fever is absent in TB meningitis. और second example है tubercular spondylitis which is Pott's disease and इसको स्केलेटल टीबी के एग्जांपल में इंक्लूड करते हैं जिसमें बैक पेन और स्टिफनेस होता है. ओके, लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस भी हो सकती है और इन एन एज मैनी हाफ ऑफ द पेशेंट विथ अनडायग्नोज स्पॉट डिजीज़. ओके, और इस ये वीडियो जो है इसका रेफरेंस है www.wikipedia.com, www.medscape.com एंड www.whoguidelines.com. यहाँ से रेफरेंस लिया गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.